सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं सेंट जेवियर हाई स्कूल में। ये अलवल एरिया है आजमगढ़ में। और नीरज सर के साथ बैठे हैं और सर से टाइम लिया है। रात हो गई, तकरीबन शाम के 7:30 बज रहे हैं। सर थैंक यू, आपने टाइम दिया और वेरी सॉरी कि हम इस टाइम पे आपको डिस्टर्ब करने आए। इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। बट चूंकि हम दूसरे शहर से आ रहे थे और हमें लेट हो गया, तो सर थैंक यू, आपने टाइम दिया। और सर हमारा जो आने का पर्पस था वो ये था कि सबसे पहले हम ये जानना चाहते थे कि सर एक तो आपकी जर्नी की कैसे शुरुआत हुई और कैसे आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े सर। Basically, I belong to Raebareli district, and though the born is in Raebareli, but brought up is in Lucknow. My schooling is from Lucknow, and my higher education I got from district Sultanpur. The college name is Kamla Nehru Institute of Physical and Social Sciences. From there I have completed my graduation in arts stream, then post graduation. After that I did my law also over there, and then I have completed my B.Ed. So my journey starts from there only actually. 23rd there was an interview scheduled in Kaisarbagh, Lucknow itself, Shasha Chamber. I'm remembering still, and there I saw the ad and I just applied just for sake of only giving the interview. I went over there, I gave my interview. Finally I got selected by Sandeep sir and other few people were there. And finally 10th September I have a visit over here, and then after 10th December finally I joined here as full-fledged principal 2010 and since then I'm still working as principal over here from last 10 years. 2021 has come, 10 years I have passed, 11th year is going on. I have achieved a lot, I have worked a lot under the supervision of my management itself. In that, with good spirit, Prashant sir, Sandeep sir, S. Chandra sir, and so on, so many people who are involved in this. Under their guidance and supervision, whatever best I was having inside me, for doing my students, my staff, my teaching faculty, non-teaching faculty and other staff, I worked hard. CBSE has also recognized me and has given me a lot of responsibility to look after, from regional office Allahabad also, as well from headquarter Delhi. I have been appointed as this city coordinator of district Azamgarh from the headquarter Delhi. I have been given the responsibility as subject expert of economics for making the marking scheme of board paper of class 12th, though it's a confidential thing which I should not tell, but I am revealing in front of you. And so on, so many things. So many things which CBSE has entrusted on me, and I am looking after those responsibilities. Now I'll not take much of your time. You said the brief journey, the detailed journey I have given you. This is what my educational field journey is. Wow, that's really amazing. Yes. But सर जैसे अब जो सिचुएशन चल रही है, इट्स फॉर एवरीवन इट्स अ फर्स्ट टाइम कि कोविड की वजह से स्कूल्स बंद हो गए और ऑलमोस्ट 1 साल बंद रहे। और अब चूँकि स्कूल खुलना शुरू हुए थे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद फिर ये सिचुएशन आई कि फिर से कुछ जगह स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, स्पेशली यूपी में। तो सर अब कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि 1 साल बंद रहा है, बच्चे 1 साल पीछे चले गए। जी। तो कैसे? और बिल्कुल सेम टाइम आ गया है, बिल्कुल सेम टाइम आ गया है। यही मार्च का महीना है जी। 22 मार्च थी 2020, संडे का दिन था, जिस दिन जनता कर्फ्यू की बात आई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस करा कंट्री को और इसके बारे में जानकारी दी। तब तक बहुत ज़्यादा लोग कोविड-19 के बारे में अवेयर नहीं थे। कुछ ही न्यूज़ आना शुरू हुई थी, कुछ चाइना से कुछ स्टूडेंट्स आए थे बिगनिंग में, जिनको पीएम साहब ने वहीं पर रोका था और वहाँ से बात शुरू हुई थी।
फिर 22 के बाद से 25 से तुरंत एक्सटेंड हो गया जी बिल्कुल सही बात। और 14 डेज के लिए 14 अप्रैल तक गया, फिर 19 डेज के लिए, 21 डेज के लिए, ऐसे करते हुए अप्रॉक्स 60 डेज के लिए ये एक्सटेंशन हुआ था। आई हैव स्टॉप्ड माई सेल्फ for only 7 days. From 23rd of March till 30th of March, I kept quiet and I was also in a dilemma to understand ये क्या चीज़ है, कैसे है, क्या वर्कआउट है। Then I went in deep itself. थोड़ा सा स्टडी करा मैंने, पूरी जानकारी ली, तो मुझे ये आइडिया लगा कि ये जो बाहर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है ये एक्सटेंड होगा यहाँ भी और तेज़ी से स्प्रेड होगा। पहले शुरुआती दौर में लोगों को लग रहा था ज़्यादा कुछ नहीं है, 15 अप्रैल से हो जाएगा, बंद हो जाए, खुल जाएगा, फिर लॉकडाउन नहीं होगा। फिर ये हो रहा था कि हो सकता है मई में आ जाए, जून से ठीक हो जाएगा सब, ये गर्मी आ जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा, फिर ये हुआ जुलाई से हो जाएगा। तो मैं और मेरी टेक्निकल टीम में, जिसमें मिस्टर रवि सिंह हमारे आईटी हेड और हमारी एक इंचार्ज मिस पीयू आलम बड़ी एक्टिव इस चीज़ में है और कंप्यूटर की, नेट की, मोबाइल की बड़ी एक्सपर्ट है। वी ऑल टुगेदर सैट फॉर अराउंड 3 days। हम लोग घर पे बैठना शुरू हुए, नियर बाई में हम सब लोग रहते हैं और उनका मैंने क्या करा, ग्रुप बनवाया। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया, सबको जोड़ दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैंने क्या करा, उसमें मुझे 7 days लगे। 3rd अप्रैल से लेके 7th अप्रैल, अराउंड 8 अप्रैल, 9th को मैंने फाइनली अपना ग्रुप का चॉक डाउन कर लिया था और सारे बच्चों को जोड़ दिया था, सारे टीचर को उसमें ऐड कर दिया था, क्लास टीचर उसमें फाइनल कर दिए थे। और उसके बाद हमने क्या करा, उसमें टीचिंग के लिए प्री प्लानिंग बच्चों में डाल दिया। उसमें फिर कुछ जो हमारे ऐप हमने लिए, जिसमें से एक इंटैप कैंपस ऐप है, उसने भी हमारी बड़ी अच्छी मदद करी और बहुत अच्छा सपोर्ट करा। हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी उन्होंने, पूरा स्टाफ मेरा ट्रेंड हुआ कि कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लें और लाइव कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम हुआ है। कैमरे के सामने होना, क्लासरूम में फिजिकल टीचिंग करना अर्लियर सिस्टम से, और कैमरे के सामने बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, पेरेंट्स हैं, देख रहे हैं, उनकी इंग्लिश चल रही है, हिंदी चल रही है, कंटेंट मटेरियल बोर्ड पर है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे टीचर्स के लिए। इसलिए इस बात का पूरा क्रेडिट हमारे टीचर्स टीम को भी जाता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी और शायद उन्हीं की वजह से आज हम सब, एटलीस्ट हम अपने को कह सकते हैं, हम अपने स्कूल के बारे में कह सकते हैं कि हम कंप्लीट सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि टीचर्स का तो मेरे ख्याल से शायद काम कई गुना बढ़ गया। कई गुना, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक टाइम ऐसा था जिस समय बहुत सारे पेरेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि आप केवल व्हाट्सएप पे चला रहे हैं, वन वे चल रहा है, बच्चे टीचर्स को लाइव नहीं देख पा रहे हैं। हमने ऑनलाइन लाइव सिस्टम शुरू करा, उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। सिटी एरिया में तो वो मिल रहा है और रूरल एरिया में वो जहाँ मिल नहीं रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, पेरेंट्स के पास एक ही मोबाइल है, 2 मोबाइल है, एक वाइफ के पास है, एक हस्बैंड के पास है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इतने चैलेंजेस। फिर भी हमारे टीचर एक टाइम पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस थ्रू कैमरे ले रहे थे, सेम टाइम में व्हाट्सएप में सारा कंटेंट मटेरियल वैसे ही जा रहा था। और जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए 19 अक्टूबर से गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद, तो हमने 2 नवंबर से स्टार्ट किया था और तब से लेके आज तक मैं ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चला रहा हूँ और मेरे बच्चे पूरे क्लासेस लगभग 90% बच्चों की अटेंडेंस, 80 to 90% अटेंडेंस मेरे बच्चों की रहती है। इस तरह से हमने अपने बच्चों को जोड़ के रखा था और आज ईश्वर की कृपा से, आप सबकी ब्लेसिंग से, हमारे उस 3100 बच्चे, जिसमें से अगर आप 3200 बच्चे थे, अगर उसमें 300 350 बच्चे हमारे 12th के निकाल दें तो लगभग 2900 बच्चे बच रहे थे और हम 2700 समथिंग पे आज की डेट में। तो इस तरह से आज हम यहाँ तक, उस मार्च से इस मार्च तक पहुँच गए हैं, अपने उन्हीं उतने ही बच्चों के साथ। बाकी नए जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो फिर अगेन ब्लेसिंग से हो रहे हैं और हमारी रेपुटेशन से, हमारी क्वालिटी टीचिंग है, डिसिप्लिन है, फैकल्टी है, उसकी वजह से ये सारी जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेरेंट्स को मिला है। बहुत अच्छे। तो मैं ये इसीलिए ये संदेश देना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को और बच्चों को कि इससे कतई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेजर्स जरूर रखने हैं, लापरवाही नहीं बरतनी है,
कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको जरा सा भी लगे, जैसे हम आप बैठे हुए हैं और जरा सा भी ये फील हो कि इनको बहुत खांसी आ रही है, इनको कफ फील हो रहा है, फीवर फील हो रहा है, रेगुलर खांस रहे हैं, वहाँ हमें अलर्ट रहना है। वहाँ हमें अलर्ट रहना है कि वो भी मास्क यूज़ करें, हम भी मास्क यूज़ करें और इसी तरह सैनिटाइजर का प्रयोग करें और एक डिस्टेंस बनाकर। और जैसा कि दिख भी रहा है, सरकार के भी जो अभी आदेश आए हैं, ये केवल होली को देखते हुए, फेस्टिवल्स को देखते हुए सरकार ने एक प्रिकॉशनरी स्टेप उठाया है ना। इसको लास्ट ईयर के मार्च के कोविड-19 से जोड़ने की जरूरत है, ना उस तरह से देखने की जरूरत है। ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है एंड आई थिंक एंड आई फील एज प्रिंसिपल एंड एज एन एजुकेशनिस्ट कि नहीं, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि इस फेस्टिवल के दौर में अगर उन्होंने प्रिकॉशनरी पहले से लेके 1-2 दिन बाद तक, और वो अंडरस्टूड है कि 31 तक होने के बाद ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल फुल डे है, 2 गुड फ्राइडे पड़ेगा, ईस्टर का है, 3 सैटरडे है, 4 संडे है, ऑटोमेटिकली 4 to 5 डेज और अपने आप ही एक्सटेंड हो जा रहे हैं। पूरे देश के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, कहीं कोरोना से डरने की, घबराने की, किसी भी प्रकार की अफवाह सुनने की और फैलाने की बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान देना ही नहीं है और करना ही नहीं है। अपने को अलर्ट रखना है, अपने परिवार को अलर्ट रखना है, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स को ऑन एन एवरेज रेगुलर बेसिस पर इसके बारे में बात करते रहना है, उन्हें अवेयर करते रहना है। जितने हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उन्हें मोटिवेट करना है। जो हमारे 50 एंड अबव के हैं, जो अलाउड हो गया है 45 एंड अबव से, उनको भी ये मैसेज देना है कि भाई आप वैक्सीनेशन कराइए। जितना तेजी से वैक्सीनेशन बढ़ेगा उतनी ही तेजी से हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी और जिन लोगों को नहीं भी लगा हुआ है या जो हमारे बच्चे हैं वो सेफ एंड सिक्योर रहें। पेरेंट्स की बात आ जाती है, फीस का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि किस तरह से पेरेंट्स भी अफेक्टेड हुए, स्कूल्स भी अफेक्टेड हुए। यहाँ पर मैं थोड़ा एक बैलेंस अपनी बात कहना चाहूँगा, जिसमें एक तरफ मैं एज प्रोफेशनलिस्ट प्रिंसिपल, एक लीडर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो कि प्योर प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, जिसमें कोई गवर्नमेंट एड नहीं मिलती है, जो पेरेंट्स और बच्चों की फीस हमारे पास आती है उसी से हम अपने टीचिंग स्टाफ का सैलरी का जो भी है वो मैनेज करते हैं। हमारे पास बच्चे ज़्यादा हैं, 126 का स्टाफ है हमारे पास पूरा, और हमने अपने इस कोरोना पीरियड में किसी भी स्टाफ को, अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करके अपने किसी भी स्टाफ को हटाने नहीं दिया। तो वो जो फीस का एक विषय था, वहां पर थोड़ा सा ऐसे पेरेंट्स आए हैं इन परिस्थितियों में, लिटरली उनका रोना, फीस नहीं होना, जॉब चली जाना, मैनेज नहीं हो पाना, फिर भी बच्चों को पढ़ाने का जो दर्द है, वहाँ पर हमने और हमारे मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट करा हमारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को। उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास वो मेरे अपने सारे बच्चे लौट आए। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है और गर्व भी होता है कि अगर शायद हमने ये पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करी होती और हम कहीं रूड होते और स्ट्रिक्ट होते, रिजिड होते, तो शायद क्योंकि अगर हम पिछले कई सालों से हम अपना सर्वाइवल अच्छे से कर रहे हैं, तो इस साल अगर थोड़ा सा हमारा सपोर्ट उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। तो वहां पर फिर हमारी रिक्वेस्ट पेरेंट्स की तरफ जाती है, एटलीस्ट वो पेरेंट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए हैं, जो पे कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट उन्हें डिले नहीं करना चाहिए, उन्हें फीस को रोकना नहीं चाहिए और उन्हें अपने समय से बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस जमा करनी चाहिए। जहाँ थोड़ी सी दिक्कत है वहाँ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। दूसरा एक मेरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं कई पेरेंट्स से डीलिंग करता रहता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स जानबूझ करके फीस नहीं जमा करते हैं, रोक लेते हैं, शायद बाद में आएंगे तो छूट मिल जाएगी या नहीं जमा करना। मेरा ये मानना है कि जिस दिन बच्चे को ये बात महसूस हो जाएगी
कि मेरे पापा ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं फीस। तो मेरा ये अपना पर्सनल मानना है कि अगर बच्चे को ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे फादर या मेरी मदर कैसे ये पैसा अर्न करके मुझे पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत से, और ये हार्ड अर्न मनी है जो मेरी पढ़ाई पर इन्वेस्ट की जा रही है, तो मुझे इसे सीरियसली उसी तरह से लेना चाहिए। और जब वो मैनिपुलेशन और वो जो स्कूल के अगेंस्ट थॉट है, साहब ये देखिए स्कूल वालों का ये आज मैसेज आ गया, या ये आज ऐसे हो गया, या आज फीस के लिए बुलाया जा रहा है, या आज एग्जामिनेशन है, या आज एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा, डिफरेंट स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जब वो उनका वर्बल स्टेटमेंट उन लोगों के सामने आता है कि ठीक है हम देख लेंगे, स्कूल नहीं जमा करेंगे, लेकिन बच्चे के दिमाग में मेरी अपनी ओपिनियन है कि पढ़ाई के लिए आपकी अपनी जो अर्न की हुई हार्ड अर्न मनी है, अगर जब आप उस बच्चे पर लगाते हैं, उन बच्चों को मैंने ज़्यादा परसेंटेज में सक्सेसफुल होते हुए देखा है। ऐसे मेरे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पेरेंट्स बहुत अच्छे सक्सेसफुल अर्नर नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो अर्निंग है उससे जो बच्चा देख रहा है कि किस तरह से मेरे पेरेंट मेरी पढ़ाई के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं या ला रहे हैं मेहनत करके, उससे उन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई करी, उनका परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस हुए। तो मेरा ये कहना है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है नटशल में, कि पेरेंट्स उस फीस को, क्योंकि उनके बाकी कोई काम नहीं रुकते हैं, वो चाहे उनका घर में कुछ काम करवाना हो, बनवाना हो, या कहीं शादी ब्याह में जाना हो, या परिवार में और खर्च करना हो, लेकिन जहाँ फीस की बात आती है वहाँ पर उनको ये लगता है कि ये जबरदस्ती फीस हमको एक्स्ट्रा जमा करनी पड़ेगी, इस बार तो फीस लगनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो सरकार कोई ना कोई आदेश जरूर पारित करती है। चाहे पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट तक गए, अभिभावक संघ बना, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट गए, लेकिन किसी ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, बल्कि सबने ये वापस कहा कि इस समय तो टीचर और स्कूल और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं, कैमरे को फेस कर रहे हैं, जिसमें हर मिनट हर पल पेरेंट्स घर से बच्चे उन पर नजर रखे हुए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं, सारा असेसमेंट उनका आज इसकी। ऐसे तो क्लासरूम के अंदर वो कैसे भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरा यही सभी से ये कहना है कि ना कोरोना से डरें, ना लोगों को डरवाएं, और आगे कुछ भी ऐसा नहीं होना है। सब स्कूल चलेंगे, सारी चीजें चलेंगी, सब चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, होली होने जा रही है, उसके पहले दीपावली हुई। हाँ, हम सब प्रिकॉशंस के साथ ये जरूर हमें ध्यान रखना है। ये चीजें हैं, बाकी तो मैं तो बोलता रहूंगा। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से चीजों को बोला और थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम दिया और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, और हमारे भी यही काम है कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुले और वापस सारी चीजें। नहीं, हम स्कूल पूरा कहीं किसी भी जगह पर, हम अपना 10th 12th 9th 11th तो हमने कहीं किसी जगह 2 नवंबर था, उस 2 नवंबर से आज तक बीच में मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी। जरूरत पड़ने पर मैंने संडे भी पढ़ाया है, और हमारे टीचर्स ने संडे भी पढ़ाई कराई है, और बच्चों ने पढ़ा है। सब हमारे लिए मोटिवेशन यही रहा है कि वो बच्चे आए हैं, हमको इनकरेज करा है, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है पढ़ने में, पेरेंट्स आए हैं। और मैं इस बार फिर उम्मीद करता हूँ, जैसे लास्ट ईयर मैंने पूरे इस पूर्वांचल में ही, इस डिस्ट्रिक्ट में मेरे जो टॉप 10 की लिस्ट थी, उसमें से 20 से 22 स्टूडेंट्स आ रहे थे, 16 बच्चे मेरे उसमें से टॉपर्स लिस्ट में थे, 10th में भी और 10th में भी। होप करता हूँ इस बार भी आप सबकी ब्लेसिंग से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और हार्ड वर्क ऑफ माय टीचर्स, इस बार भी हम फिर से डिस्ट्रिक्ट और पूर्वांचल में टॉप करेंगे। हमारी कामना में यही सारी चीजें अच्छी हों, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें टाइम देने के और अपने थॉट्स शेयर करने के। हमेशा आपका बहुत